देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2021। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2021। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଓ ରହିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫିକି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମେଗା କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ନୂଆ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ବଜାର ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏବର୍ଷ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାର ଥିମ୍ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ, ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କଟ ରହିଛି ପାଳ ଛତୁ। ନମ୍ବର 2, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଗଣିତ, ଫିଜିକ୍ସ ଓ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏଆଇସିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଗଣିତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଓ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଏଆଇସିଟି ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ କହିଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅତିକମ୍ରେ 45% ମାର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 14ଟି ବିଷୟରୁ 3ଟି ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର। ବାଲେଶ୍ୱରର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରାଯିବା ନେଇ ୟୁପିଏ 2 ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2013 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଜାରି କଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା ଛିନତାଇ ମାମଲାକୁ ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ନେଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଅପରାଧ ହେଉଛି ତେବେ 7077798111 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଅପରାଧ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇହେବ। ତାଛଡ଼ା କୌଣସି ଅପରାଧୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜଣାଇ ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମାମଲାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିହେବ। ଏହି 7077798111 ନମ୍ବରଟି କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୁଟ୍ତରାଜ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। 22-23 ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 6, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ସ୍ଥଗିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ଆଦାୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ବଢ଼ିବା ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 7, ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସୁପାରିଶ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ଖୋଲାଯାଉ। ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। କେଉଁଠି 50% ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସ ସୀମା 62 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ଅଧିକ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 8, 8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଦାମ।
खरादिन आसिलाणी या फଳରେ देशରେ एयर कंडीशनर चाहिदा बढ़ी जाइछि। विशेषकर घरे लागुथिबा एसी गुड़िकर चाहिदा अधिक रही। चाहिदा सहित एसीर दाम मध्य बढ़िबाकु जाउछि। देशर अग्रणी एसी निर्माता वोल्टास, डाइकिन, एलजी, पानासोनिक, हायर, ब्लू स्टार और सैमसंग आदि कंपनी बिक्री रे दुई अंकर अभिवृद्धि आशा रखिछंती। चाहिदा वृद्धि एवं एसी निर्माण में व्यवहृत उपकरणर दाम बढ़िबा द्वारा यह महंगा हेबाकु जाउछि। डाइकिन चलित मासरे एसी मूल्य में 3 ରୁ 5% पर्यंत वृद्धि करिवो। पानासोनिक एहर एसी दाम रे 6 ରୁ 8% वृद्धि योजना रखिछि। केवल एसी नुहे, यह कंपनी रेफ्रिजरेटर मूल्य मध्य 3 ରୁ 4% पर्यंत बढ़ेइबो। टाटा ग्रुप कंपनी वोल्टास पूर्व एसी दाम बढ़ी सारी। गत जनवरी रे ब्लू स्टार एहर उत्पाद मूल्य में 5 ରୁ 8% वृद्धि करथिया बेले एप्रिल रे दर प्राय 3% वृद्धि योजना रखिछि। नंबर 9, पेट्रोल रु 33 और डीजेल रु 32 टंका आदाय करुछंती केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सोमवार लोकसभा रे सूचना दैछंती जे प्रत्येक लिटर पिछा पेट्रोल विक्रय रु प्राय 33 टंका एवं डीजेल पिछा 32 टंका केंद्र सरकार आय करुछंती। अन्य पक्षरे यह स्पष्ट करिसंती जे निकट भविष्य रे पेट्रोल और डीजेल जीएसटी अधीन को आसिबार संभावना नाही। सोमवार क्रमगत भाव 16तम दिन पई देश में पेट्रोल और डीजेल रो मूल्य सर्वोच्च स्तर रे रहिते बेले केंद्र सरकार पक्षरु अर्थमंत्री लोकसभा रे कहिसंती जे एक्साइज ड्यूटी, सेस और सरचार्ज माध्यम रे इंधन रु विपुल परिमाणर आय होउछि। केंद्र सरकार स्वीकार करिसंती जे मई 6, 2020 ठारू लिटर पिछा पेट्रोल रु 33 टंका एवं लिटर पिछा डीजेल रु 32 टंका रोजगार हेउछि। नंबर 10, दिल्ली, केरल, कर्णाटक रे 10टी स्थान रे एनआईए चढ़ाऊ। आईएस सहित संपृक्त थिबा दड़े व्यक्ति विपक्ष में काली एनआईए दिल्ली, केरल और कर्णाटक 10टी स्थान रे चढ़ाऊ आरंभ करिछि। गत 48 घंटा मध्य एनआईए पंजीकरण करिथिबा एक नूतन मामला सह ई चढ़ाऊ संश्लिष्ट। बेस किछि दिन हेब एनआईए 6 ରୁ 7 जण लोकंक उपरे दृष्टि रखिबा परे ए मामला रुजु करिथिला। विशेष सूत्रରୁ प्राप्त तथ्य अनुसार एनआईए चढ़ाइथिबा चढ़ाऊ समय 5 जण व्यक्ति को गिरफ्त करा जाइछि। नंबर 11, शिल्प संस्था को बैंक बिकिबा बड़ भूल हेबो कहिले राजन। 2021-22 बजेट रे घरीकरण को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। अतीत रे ए क्षेत्र रे सरकार हासिल करिथिबो सफलता समस्त को जଣା अछि। एथर यह किबड़ी भिन्न ता बुझी हेउ नाही बोली भारतीय रिजर्व बैंक रो पूर्वतन गवर्नर रघुराम राजन कहिसंती। केउठारु राजस्व संग्रह करा जिवो ता बजेट रे स्पष्ट करा जाई नाही। गरीबों कल्याण पई और बेकारी समस्यार समाधान विषय रे बजेट रे विशेष किछि उल्लेख करा जाई नाही। दुई बैंक रो घरीकरण करा जिवो बोली सूचना दिया जाइथिया बेले से विषय रे आउ किछि स्पष्ट करा जाई नाही। शिल्प संस्था हाथ को बैंक टेकी देबा एक बड़ भूल हेबो बोली राजन कहिसंती। सेहीपरि एक भलो बैंक को विदेशी बैंक हाथ को टेकी देबा राजनीतिक दृष्टिकोण कष्टकर कार्य होई पारे बोली से कहिसंती। नंबर 12, कोविड संक्रमण, सबु मुख्यमंत्री जरूरी बैठक डाकिले मोदी। एकाधिक राज्य में कोविड संक्रमण बढ़ुथिबारु केंद्र सरकार चिंतार पड़िछंती। राज्यगुड़िक संक्रमण को रोकिबा पई एकाधिक पदक्षेप नेउछंती। तथापि संक्रमण बेलगाम हेबारे लागिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबु मुख्यमंत्री आलोचना करिबा पई जरूरी बैठक डाकिछंती। आसंता बुधवार दिन 12:30 रे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मध्य बैठक हेबो बोली जଣା पड़िछि। वर्ष आरंभरू देश में दैनिक संक्रमण 10,000 तले रहुथिला। हेले काली दैनिक संक्रमण 26,291 रे पहुंची जाइछि। नंबर 13, चाषी आंदोलन को समर्थन कले मेघालय राज्यपाल। केन्द्रर 3 कृषि आईन को विरोध करी 3 मासरू अधिक दिन हेब दिल्ली सीमार चली चाषी आंदोलन को समर्थन करिसंती मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक। आंदोलनरत चाषी दाबी को शुणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को अनुरोध करिसंती। उत्तर प्रदेशर बागपतर रे एक कार्यक्रम रे जोगदेई से कहिसंती प्रधानमंत्री और गृहमंत्री आंदोलनरत चाषी को दिल्ली रू खाली हाथ में फेरई देव उचित हेब नाही। जदि केंद्र सरकार फसल उपरे एमएसपी ग्यारंटी देवे ताहले से आंदोलन को शेष करई देवे बोली प्रतिश्रुति देइछंती। राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक कहिसंती चाषी को एमएसपी ग्यारंटी जदि सरकार देवे ताहले आगामी दिन में आंदोलन केमिति शेष हेबो ता मो दायित्व। एमिति कि सरकार और चाषी मध्य थिबा विवादर समाधान मध्य करई देबी। नंबर 14, राज्य रे दिनकू 7,300 आरटीपीसीआर टेस्ट करा जिवो कहिले नव दास। राज्यर कोविड स्थिति संपर्क में बयान रखिंट राज्य स्वास्थ्य मंत्री नव दास। से कहिसंती जे बाहर राज्यर कोविड स्थिति उपर स्वास्थ्य विभाग तीक्ष्ण नजर रखिछि। राज्य में दिनकू 7,300 आरटीपीसीआर टेस्ट करने को धार्य कर स्थितिर तदारख करने को स्वतंत्र सचिव डॉक्टर अजित कुमार महांती को दायित्व दि जाइछि। बाहर आसुवा समस्त लोकों स्वास्थ्य परीक्षा करा जिवो। गोटे स्वतंत्र गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाई समस्त जिलापाल सीडीएमओ को पठा जाइछि। आरएमआरसी निर्देशकों को सेरो सर्वे पई प्रस्ताव दिया जाइछि। संबलपुर, राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, पुरी रे सेरो सर्वे हेबो। देवगढ़, नयगढ़ रे आरटीपीसीआर टेस्टिंग लैबोरेटरी तुरंत खोलिबा पई कह जाइछि। टेस्टिंग किट जहाँ दरकार ताकू किनिबा पई राज्य औषध निगम को कह जाइछि बोली से कहिसंती। नंबर 15, एकक पीजी नामलेखार आसिबो संस्कार।
एकक पिजी नामलेखा प्रक्रिया संक्षिप्त हेब 2020-21 शिक्षावर्ष भली 5 मास धरी चलिब नाही। नामलेखा संपर्क में छात्र छात्री अवगत करने लगी उच्चशिक्षा विभाग पक्षर आगुआ पदक्षेप नियाजिबो। छात्र छात्री सविशेष तथ्य देवाक विभाग पक्षर स्वतंत्र ब्रोचर प्रकाश कराजिबो। एथिरे नामलेखा संपर्कित टिकिनिकी तथ्य रहिबो। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िकर समस्त सीट पूरण दिगरे प्राथमिकता दियाजिबो। छात्र छात्री चयन को अधिक सहज और सरल कराजिबो। गोटे शिक्षानुष्ठान अन्य शिक्षानुष्ठान को स्थानांतर करने समय विभाग पक्षर धार्य समय मध्य सीएलसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दाखल करने को बाध्य कराजिबो नाही। नामलेखा समय ही छात्र छात्री फी दाखल करेंगे। परवर्ती पर्यायर अन्य शिक्षानुष्ठान को स्थानांतर हेले पूर्व नामलेखा अर्थ फेरी पाइबे। नामलेखा लगी सेंट्रल काउंसिलिंग सह सेंट्रल फी आदाय को प्राथमिकता देवाकू उच्चशिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। नंबर 16 तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष हेले जसवंत सिन्हा। अल्प दिन तले तृणमूल कांग्रेस रे जोग देइथिबा पूर्वतन केन्द्रमंत्री जसवंत सिन्हा को काली दलर उपाध्यक्ष भाव नियुक्ति कराଯାଇଛି। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट रे मंत्री थिबा सिन्हा शनिवार दिन तृणमूल कांग्रेस रे जोग देइथिले। तांको मध्य तृणमूल कांग्रेस रो जातीय कार्यकारिणी कमिटी रे शामिल कराଯାଇଛି। तृणमूल कांग्रेस भवन रे एक सामाजिक सम्मेलन रे सिन्हा कहिथिले निर्वाचन रे विजय हासिल करने निमंते बीजेपी जहा नाही ता करिपारे। ममताजी को आक्रमण कराजिबा घटना जोगु ही मु तांको सह कार्य करने को निष्पत्ति नैथिले। से आहरी मध्य कहिथिले जे देश में गणतंत्र विपदग्रस्त होईछि, तेणु तृणमूल कांग्रेस को विपुल संख्यार भोट दे विजय करिवार समय आछि। नंबर 17 दिल्ली मुंबई बांगालोर हैदराबाद विमानबंदर अंशधन को बिक्री करि पारंती सरकार। केंद्र सरकार अधीन में किसी विमानबंदर अंशधन को बिक्री कर विचार करुछंती सरकार। बांगालोर हैदराबाद और दिल्ली विमानबंदर में सरकारी अंशधन को केंद्र सरकार बिक्री करि पारंती। सूचना मुताबक आसेट मॉनेटाइजेशन बा संपत्तिर निजीकरण जरिया सरकार 2.5 लाख कोटी टंका संग्रह करने को लक्ष्य रखिछंती। गणमाध्यमर रिपोर्ट अनुसार बांगालोर हैदराबाद और दिल्ली विमानबंदर व्यतीत सरकार आहरी 13टी विमानबंदर चिन्हट करिछंती, जहाकू 2021-22 आर्थिक वर्ष में घरीकरण करिवे। सूचना अनुसार घरीकरण 13टी विमानबंदर मध्यरु उभय लाभजनक और अणलाभकारी विमानबंदर अंतर्भुक्त हेबो। नंबर 18 अक्टोबर मासरु सौरशक्ति रे दौड़िबो ट्रेन। आसंता अक्टोबर मासरु सौरशक्ति रे चलिबो ट्रेन। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर और दुर्ग मध्य यह ट्रेन चलिबो। दक्षिण पूर्व मध्य रेलपथ 310 कोटी टंका व्यय जांजगिरी रे 210 एकर सौर विद्युत प्रकल्प निर्माण करुछि। सौर पैनेल स्थापन पर स्तंभ निर्माण कर बेले केबल लगेगा काम आरंभ होगा जाउछि। मिलिथिबो सूचना मुताबक निर्माण हेबाकु सौर प्रकल्प प्रतिदिन प्राय 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन करिवो। या सहित रायपुर और दुर्ग मध्य चलुथिबा 120टी पैसेंजर और मालवाही ट्रेन यह सौरशक्ति द्वारा चलिबो। या द्वारा रेलबाई वार्षिक 14 कोटी टंका संचय करिवो। नंबर 19 सेना नियुक्ति रे दुर्नीति 23 जनक नारे मामला। सेनाबाहिनी नियुक्ति में व्यापक दुर्नीति होइथिबा अभियोग होइछि। यार तदंत दायित्व सीबीआई ग्रहण करी मामला रुजु करिछि। सीबीआई रुजु करिथिबा मामला रे इंडियन आर्मी रो 7 जन ऑफिसरंक समेत मोट 23 जनक ना रहिछि। सीबीआई कहिछि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जरिया रे होइथिबा नियुक्ति रे व्यापक अनियमितता और लांच कारबार होइथिबा अभियोग होइछि। ऑफिसर्स एवं अन्य रैंक रे नियुक्ति बेले अनियमितता कर जाइछि। एथिपई 17 जन सेना कर्मचारी और अन्य 6 जन को अभियुक्त भाव दर्शाई तदंत आरंभ कर जाइछि। ए संक्रांत अभियोग मिलिबा परे मामला रुजु कर जाइथिला। नंबर 20 मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन बाजे निलंबित। शिल्पपति मुकेश अंबानी बासभवन आंटिलिया निकटरू उद्धार होइथिबा विस्फोरक भरा गाड़ी घटनार तदंत में गिरफ होइथिबा मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन भाजे को सोमवार दिन चाकरी निलंबन कर जाइछि। एही मामलार तदंत करुथुबा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शनिवार राति 11:50 रे तांको गिरफ करिथिला। रविवार दिन सचिन भाजे को दक्षिण मुंबईर एक अदालत रे हाजर कर जाइथिला। एही घटनार अधिक तदंत निमंते सचिन को मार्च 25 पर्यंत हाजत को नेबा लगी अदालत एनआईए को अनुमति देइछंती। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुखपात्र कहवा अनुसार फेब्रुआरी 25 तारिख दिन कार्मिकेल रोड निकटरे विस्फोरक भरा गाड़ी रखिबारे भूमिका संपृक्ति निमंते सचिन बाजे को गिरफ कर जाइछि। नंबर 21 पुणी बीजेपी रे मिसिले 10 जन टीएमसी नेता। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन जेतिकी पाखी आसुछि क्षमतासीन टीएमसी रु सेतिकी नेता कर्मी और विधायक माने बीजेपी रे मिसिबारे लागिछंती। एही क्रमरे काली टीएमसी रे एकाधिक कर्मी और नेता पद्म धरिछंती। एथिरे 5 जन टीएमसी रे दृढ़ समर्थक और 3 जन काउंसिलर रहिछंती। गत सप्ताह टीएमसी रो 5 विधायक बीजेपी रे मिसिथिले। सेहीपरि मालदा जिला परिषद मध्य टीएमसी हरैथिला, कारण जिलार परिषदर सदस्य माने बीजेपी को समर्थन घोषणा करिथिले। नंबर 22 चीन रे भयंकर धूलिझड़ 341 निखोज 400 विमान उड़ाण रद्द।
गत 10 वर्ष पर पुणी थे चीनवासी देखिंट भयंकर धूलीझड़। चीनर बेजिंग रे धूलीझड़ होता बेले समग्र बेजिंग सहर हलदिया आलोक आच्छादित हो जाइछि। अनेक अंचल किछि न देखा लोके दिन में गाड़ीर हेडलाइट लगी यातायात करुछंती। तेबे एही धूलीझड़ पर बेजिंग रे वायु गुणवत्ता स्तर 500 अतिक्रम करिछि। एभली स्थिति को डाक्तर और वैज्ञानिक माने सबुठारु सांघातिक बोली कहिसंती। एही धूलीझड़ पई 400 रु अधिक विमान बातिल कर जाइथिबा बेले 341 जन लोक निखोज होइथिबा जणा पड़िछि। नंबर 23 देशव्यापी 2 दिनिया धर्मघट जोगु बैंक सेवा विपर्यस्त। सोमवार ठारू देशव्यापी आरंभ होइथिबा 2 दिनिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक धर्मघट कारणरू चेक क्लियरेंस समेत अन्य बैंक सेवा प्रभावित होइछि। दुईटी राष्ट्रीयत बैंक को घरीकरण करजिबा प्रस्ताव को विरोध करी बैंक कर्मचारी माने धर्मघट आरंभ करिसंती। गत मासरे उपस्थापित केंद्र बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सरकारक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान रो अंशविशेष भाव दुईटी राष्ट्रीयत बैंक को घरीकरण करने कथा घोषणा करथिले। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन अधीन 9टी बैंक संघ आज पर्यंत हेबाकु थिबा धर्मघट रे अंशग्रहण करिसंती। प्राय 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी माने एही धर्मघट रे सामिल होइछंती। किंतु आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एवं एक्सिस बैंक भली घरोई बैंक सबू एही धर्मघट रे सामिल होई नाहंती। नंबर 24 नवम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को हरियाणा रे मागणा शिक्षा। राज्य बजेट उपस्थापन बेले हरियाणा सरकार नवम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को मागणारे शिक्षादान करजिबो बोली घोषणा करिसंती। 2021-22 बजेट रे हरियाणा सरकार मुख्यतः स्वास्थ्य, कृषि और भित्तिभूमि स्थापन उपरे विशेष गुरुत्व दैछंती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चलित वर्ष पई विधानसभा रे 1.56 लाख कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसंती। बजेट उपस्थापन करी हरियाणा सरकार शिक्षा व्यवस्था रे केजी टू पीजी कार्यक्रम नामक एक नूतन पदक्षेप ग्रहण करिसंती, जहाँ छात्र छात्री को सहजरे उच्च शिक्षा लाभ करिबारे साहाय्य करिवो। एही नूतन पदक्षेप अनुसार छात्र छात्री माने गोटे शिक्षानुष्ठान रे नर्सरी ठारू स्नातकोत्तर पर्यंत शिक्षा लाभ करि परिबे। एही कार्यक्रम प्रारंभ रे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं रोहतक एमडीयू रे आरंभ हेबो। नंबर 25 पर्यटन गाड़ी ऑपरेटरଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ परमिट स्कीम। पर्यटन जान ऑपरेटरों पर नुआ परमिट स्कीम सड़क परिवहन राजपथ मंत्रालय पक्षर घोषणा कर ऑनलाइन रे सर्वभारतीय परमिट अनुमति बा परमिट पर आवेदन करने को पड़ो। समस्त कागजपत्र शुल्क दाखल कर 30 दिन पर यह परमिट जारी कर प्रारंभिक पर्यायर 3 मास और यापर 3 मासर गुणितक हिसाब से 3 वर्ष पर्यंत परमिट जारी कर नुआ स्कीम आसंता एप्रिल 1 रु देश में लागू हेबो। पूर्वर प्रचलन में थिबा अन्य समस्त परमिटर वैधता बलवत्तर रहिबो। द्वारा देश में पर्यटन विकास हेबो और राज्यगुड़िकर राजस्व बढ़िबो बोली आशा कर जाउछि। नंबर 26 भारत में निर्माण है 1 मिनिट रे 600 गोली बरसुथिबा बंदूक। भारतीय सेनार जवान और अन्य सुरक्षाकर्मी को आहरी सशक्त करने को भारत में प्रस्तुत होइछि घातक हथियार। कानपुर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री शत्रुंक निद हजेबाकू मारात्मक हथियार प्रस्तुत करिछि। एलएमजी बेल्ट फेल्ट नाम नामित एही बंदूकर बड़ विशेषत्व होउछि जे यह 1 मिनिट रे 600 गोली फायरिंग करिपारे। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री एवं एडीआर पुणे एहाकू एकत्र भाव प्रस्तुत करिसंती। एही बंदूकटीर विशेषता हेउछि एहार गुड़ी। पूर्वरु समस्त लाइट मेसिन गन बा एलएमजी रे मैगजीन संजोग कर जाउथबा बेले एथिरे गुड़ी बेल्ट लगा जाइछि। प्रतिटी बेल्ट रे 50 टी बुलेट थिबा बेले याकू सिंगल शॉट और स्वयंचालित शॉट रे मध्ये गुड़ी कर जाई परिबो। सिंगल शॉट रे गोटिए गुड़ी बाहरिबार व्यवस्था थिबा बेले स्वयंचालित शॉट रे स्वयंचालित ट्रिगर को दबाइबा समय रे 50 टी गुड़ी एक संगे बाहरिबो। नंबर 27 किन्नरंक पई खोलिला एनसीसी रो द्वार। केरल हाइकोर्ट सोमवार एक गुरुत्वपूर्ण राय रे नेशनल कैडेट कर्प्सर किन्नर बा तृतीय लिंगी व्यक्ति विशेषों को सामिल पई अनुमति प्रदान करिसंती। एथिसह नेशनल कैडेट कर्प्स एक्टर धारा 6 को संशोधित करी एणिकी केवल मात्र पुरुष महिला नुहंती एमानक सह किन्नर बा तृतीय लिंगी माने मध्ये एनसीसी रे एडमिशन नहीं पारिबे बोली अनुमति दैछंती। एनसीसी तृतीय लिंगी को चिन्हि पारु नथिबा कथा किन्नर मानकर एनसीसी रे प्रवेश पई प्रतिबंधक होई पारिबो नाही बोली कोर्ट स्पष्ट करिसंती। नंबर 28 ओडिशार प्रस्तावित 3टी रेलपथ आर्थिक दृष्टि लाभजनक नुहे कहले केंद्र रेलमंत्री। काली संसद में बीजेटी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पट्टनायक ओडिशा रे प्रस्तावित दीघा जडेश्वर, झारसुगुड़ा अंबिकापुर, बुरामरा चकुड़िया, बरगढ़ नुआपड़ा और जाजपुर धामरा आदि नुआ रेलपथ अग्रगति संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर रखिछंती केंद्र रेलमंत्री पीयूष गोयल। दीघा जडेश्वर रेलपथर पश्चिमबंगर राज्य सरकार जमी अधिग्रहण करिपारुनथिबारु सही काम आगे पारु नाही। झारसुगुड़ा अंबिकापुर रेलपथ निर्माण लागि सर्वे सरी जाइछि। सुंदरगढ़ देई निर्मित हेबाकु थिबा कार्य शेष होइछि, किंतु एही प्रकल्प आर्थिक दृष्टि लाभदायक नुहे बोली जना जाइछि। एणे मयूरभंज जिले में आंशिक भाव जाउथिबा बुरामरा चकुड़िया रेलपथ आर्थिक दृष्टि लाभजनक नुहे बोली रेल विकास निगम लिमिटेड मत देइछि। अपरपक्षे बरगढ़ नुआपड़ा रेलपथ आर्थिक दृष्टि अनुपयुक्त बोली जना पड़िथिला। जाजपुर धामरा रेलपथ पई सर्वे शेष होइछि। नंबर 29 राज्य में पुणी 66 जन कोविड संक्रमित चिन्हट।
राज्य में पुणी 66 जन कोविड संक्रमित चिन्हट होती। अनुगुड़ जिलूर 3, बरगढ़ 10, कटक 5, गंजाम 2, जाजपुर 6, झारसुगुड़ा 4, खोर्धा 9, नयगढ़ जड़े, नुआपड़ा जड़े, संबलपुर 3 और सुंदरगढ़ 7 जन संक्रमित चिन्हट होती। नंबर 30 17 विजु स्मारकी क्रिकेट टूर्नामेंट। आसंता 17 तारिख खोर्धा बीजेपी हाईस्कल पड़िया विजु स्मारकी क्रिकेट टूर्नामेंट अनुष्ठित हेबो। एथिरे केवल राज्यर विजु युव विजु छात्र जनता दलर सदस्य ही भाग नहीं पारिबे बोली टूर्नामेंटर आयोजक कहिसंती। 17 तारिख उद्घाटनी मैच थिबा बेले 24 तारिख रे फाइनल मैच अनुष्ठित हेबो। अंतिम दिवस रे राज्य विधानसभा मंत्री और विधायक मानक नहीं एक दिवारात्र प्रदर्शनी मैच अनुष्ठित हेबो। प्रत्येक दिन 2 गोटी मैच रही बेले प्रथम मैच 9 आरंभ हो मध्याह्न 12:30 और द्वितीय मैच मध्याह्न 1 घटिका आरंभ हो अपराह्न 4:30 रे शेष हेबो। प्रत्येक मैच 15 ओवर और टेनिस बॉल रे खेला जिवो। प्रीमियर लीग पई बौद्ध, पुरी, भुवनेश्वर, गंजाम, खोर्धा, नयगढ़ जिलूर युव छात्र विजु जनता दलर खेलाड़ी माने अंशग्रहण करिवे। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।